So I welcome all of you in this second practical of your MySQL. पहले कि हम स्टार्ट करें उससे पहले प्लीज कंफर्म कर दो सबका प्रैक्टिकल नंबर 1 फिनिश हो चुका है. Yes, sir. Okay. So our today's goal is practical number second of MySQL. So let me present my screen to you. Yes, please let me know. Can you able to see my screen? Yes, sir. Okay. Now let me open that software, which is nothing but the black and white software. Yes, let me know all these two PDFs or you can say dialog boxes are visible for you. Yes, sir. Okay. Now remember, if you observe the questions of your second practical, then all these questions based on the previous table which we have already created in our practical number 1. Okay, but there are some questions in your mind, सर हमने वो practical 1 में किया था, बाद में हमने close किया, तो अब हमको वो data फिर से type करना पड़ेगा and so on. But जो भी आप वर्क करते हो वो MySQL में विदाउट सेविंग ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है जब तक आप डिलीट नहीं करते. ओके, सो our data is already there in this software. So let me show that to you. So you need to first give the command show databases. Okay, and at the end for completing the statement or you can say sentence, always you need to use semicolon at the end. So let us press enter. Now you can see I am having these many databases in my database. Okay, for example, BCom 111, BCom 127, BCom 184, BCom 480. Okay, so because I have already performed these 4 practicals for different batches, so I can use any one of the database from this list. So let me use BCom 480. Okay, so for using that database, you need to give the command use database name. Okay, here now I am using the database of BCom 480. So I am going to give the command use BCom 480. Okay, and at the end you need to give the semicolon and just press enter and see what will happen. So here I am having my database has changed. Okay, now the question arises whether our data is already there in my table or not. How you can check that? For that you need to give the command select. If you want department wala table, then give the command select star from department. If you want EMP wala table, then give the command select star from EMP. Okay, so here we want EMP table. So I am giving the command select star from EMP. Okay, now I am pressing enter and see what will happen. So here I am having only one row in this list, which means what? This database doesn't work for this because in this database I am having only one entry in my table. So let us change that database. So again, if you want to use the different database, then give the command use database name. Now I am going to use BCom 480, BCom 184. Okay, because in the database of BCom 480, I am having only one row. But we want the complete table which we have already created in our practical number 1. And
all the data is not there in this database, which means what? We need to change our database. ओके ये मैंने करके दिखाया था फॉर 480 की जो बैच थी उनके लिए, लेकिन बाद में फिर मुझे बाकी के डिटेल्स टाइप ना करना पड़े, फिर इसके लिए मैंने बीकॉम 184 वाला डेटाबेस यूज किया था. द सेम ट्रिक आई एम गोइंग टू डू ओवर हियर. आई एम गोइंग टू यूज database become 184. Okay, so again my database has changed. Now let us see whether we are having the complete data in this database or not. So again you need to give the same command, select star from emp. Now I am pressing enter. Now you can see we are having all the data in my table, or you can say emp table. Is it clear to everyone how you are going to check whether your data or whatever you have written in your MySQL software, whether that is there or not, how you are going to check that? Yes. Now don't put the messages in the chat box. Now I am unable to see your messages. You just unmute yourself and let me know. Is it clear to everyone how you are going to check whether your data is there in MySQL software or not? Yes, sir. किसी को कुछ डाउट? No, sir. Okay. So this is our data, or you can say table of EMP. Now we need to perform all these questions using this table EMP. So let us start performing one by one. So our first question of today's practical is display all the clerks of department number 20. Now observe in the department ID column how many departments we are having for this ID 20. 2 departments. 3. 3 departments. Observe it carefully. There are not 2, there are exactly 3. Yes, sir. Okay, now observe these 3 departments, 320 number department, and see, do we have any job for the clerk in these 3 departments? Yes. Yes, so in the job column we are having exactly one position for the clerk with respect to the e-name Smith. So the answer of this query gives me the output of this first row, okay, which contains the job as clerk. So can anyone tell me which query I need to write it over here so that we can get the first row? And remember, I want answers from your side. मैम ने आपको पहले बोल के रखा होगा, आपने queries already लिख के रखी होंगी in your notebook. And we are going to just verify all that queries, whether it is proper or not. Okay, so someone please unmute yourself and tell me what I need to write. Select star from Select star from EMP, sir, or job. EMP, then Yes, sir. बस इतना ही. से अगर यही हम फिर से अगर टाइप करके सेमीकोलन दे देंगे तो ऊपर भी हमने यही क्वेरी दी थी, तो हमें टेबल ही शो होगा. हमें क्या शो करना है? जॉब इज नथिंग बट क्लर्क फॉर द डिपार्टमेंट आईडी 20. And remember, there is a Ramban Jugaad for the questions starting with the word display. Okay, so जो भी क्वेश्चन डिस्प्ले से स्टार्ट होगा आपको क्वेरी ऑलवेज सिलेक्ट से स्टार्ट करनी है. ओके, दिस इज द रामबाण जुगाड़. कहीं पर भी आपको डिस्प्ले वर्ड दिखा तो आपकी क्वेरी सिलेक्ट से ही स्टार्ट होनी है. ओके, अब हमें क्या चाहिए? हमें जॉब चाहिए किसका? क्लर्क का. सो आपको कौन सा क्लॉज यूज करना पड़ेगा?
where clause, where job is equals to what we are interested in. We are interested in the position of clerk. So where job is equals to clerk. And remember, this clerk is in alphabets. So we need to enter that clerk in single quotes. While entering the rows, we need to encode this in the double quotes. But while writing queries, we need to encode all these alphabets in the single quotes. Okay, and we are interested for what? We are interested in the department ID 20. 20. So department ID is equals to 20. And at the end, you need to give the semicolon. Now you just check it once again whether our queries is written properly or not. And if you are sure, now you can observe. I have forget to write T in the department ID. So let me do that. Okay, now it is clear. Now you just press enter and see what will happen. Okay, so here you can see we are getting exactly the first row where the job is clerk for the department ID 20. Is the question number 1 clear? Yes, sir. Anybody want to ask any kind of questions in it? Okay. Now let us try to observe the next question. So in the next question, we need to display the employees of department number 30 or 10 join in the year 2016. So, so here you can see this question is starting with the word display. So you can apply the Ramban Jugaad. Okay. That is, we need to start our query with the word select. Okay. But before going to proceed with this query, can anyone tell me what is the meaning of this problem or this question? Display the employees where department number 30 or 10 join in the year 2016. What it means? Yes, anyone? ईयर सेम रहेगा. ईयर सेम रहेगा, लेकिन खाली हमारे पास ईयर पर ही कंडीशन है क्या? डिपार्टमेंट पे भी है 30 और 10. डिपार्टमेंट पर भी है, तो हमें खाली वो डिपार्टमेंट आईडी चूज करना है जिनका डिपार्टमेंट नंबर आइदर 30 होगा नहीं तो 10 होगा. तो चेक करो डिपार्टमेंट आईडी के कॉलम में हमारे पास कितने एंट्रीज है करस्पॉन्डिंग टू द डिपार्टमेंट नंबर 30 एंड 10. 6 एंट्रीज है. अब Yes, उन 6 एंट्रीज में चेक करो कि किनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग ईयर 2016 वाला है. फाइव. सो हमें एग्जैक्टली 5 एंट्रीज मिलनी है आउट ऑफ दिस 6 एंट्रीज whose date of joining is in the year 2016. I hope अब क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा. Now tell me how we are going to get using this software. As I told you, this question is starting with the word display, so we need to start our query with this select word. Okay. अब select के बाद आप क्वेश्चन ध्यान से रीड करो और इसमें देखो हमें कौन से 2 कॉलम शो करने हैं. क्या क्वेश्चन में कहीं पर मेंशन है हमें कोई स्पेसिफिक कॉलम्स मेंशन करने हैं या नहीं? नो सर. नो, विच मीन्स व्हाट, हम स्टार कमांड यूज करेंगे. अगर कोई स्पेसिफिक कॉलम ही शो करना होता
तो हम वो कॉलम नेम एंटर करते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेसिफिक कॉलम नहीं शो करना है, सो वी आर गोइंग टू यूज स्टार कमांड. सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP टेबल. सो EMP यहाँ तक तो आपको करना ही करना है. अब इसके आगे आपको जो करना है वो इम्पोर्टेंट है. फॉर गेटिंग द डिपार्टमेंट नंबर 30 और 10 ज्वाइन इन द ईयर 2016. ओके, तो यहाँ तक तो आप आंख बंद करके लिखना है आपको. इसमें कुछ सोचने वाला बात नहीं है. आपको जो भी सोचना है वो इसके आगे सोचना है कि अब हम कौन से सिंटैक्स या फिर कौन सा क्लॉज यूज करें सो दैट वी कैन गेट आवर आंसर. ओके, सो कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? Where clause? वेयर क्लॉज. सो वेयर. नाउ वी नीड टू गिव द कंडीशन. सो कंडीशन पहले हम किस पे देंगे? Department. Department ID. Okay, you need to specify that. Department ID, which means DEPT ID. Okay, so DEPT ID is, now here you can observe in my table I have written DEPT ID's first letter in capital letters. तो यहाँ पर भी हम capital letter ही use करेंगे. ओके ऐसा जरूरी नहीं है आप कैपिटल या स्मॉल यूज करो, बट फॉर द बेटर परफेक्शन जो भी हमने कॉलम नेम्स दिए हम वो कॉलम नेम्स एज इट इज यूज करेंगे विदाउट मेकिंग एनी डिफरेंस. ओके, सो फर्स्ट लेटर कैपिटल था तो हमने कैपिटल किया. सो डिपार्टमेंट आईडी कंडीशन क्या है? इन. अब यहाँ पे आप इन भी यूज करोगे और कंडीशन है डिपार्टमेंट आईडी कहाँ से कहाँ तक रहना चाहिए? 30 या फिर 10. So you need to enter these two values in open bracket, which means what? Department ID is either 30 or 10. और कौन सी कंडीशन है? And Date of joining date of 2016 joining is year. 2016. So DOJ is equals to 2016. बट इससे हमें आंसर मिलेगा क्या? Yes, now let me press enter and see what will happen. So here you can see there is no error in our query, but we are getting an empty set. But according to our calculation, we are having exactly 5 rows in my table after performing this query. But here I am getting an empty set. So can anyone tell me why we are getting this empty set? सर ईयर ब्रैकेट में डीओजी आएगा. Yes, see, अगर आप डीओजी का कॉलम ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो हमारे डीओजी कॉलम में कहीं पर एग्जैक्टली 2016 वाली एंट्री है क्या जिसमें खाली ये 4 ही डिजिट्स हो? 2016 है कहीं पर डीओजी कॉलम में? नो. इसीलिए हमें यहाँ पे ये एम्प्टी सेट शो हुआ. तो हमें खाली ईयर स्पेसिफाई करना है तो हम ये डीओजे ब्रैकेट में डालेंगे और इसके बाहर लिखेंगे ईयर. Okay, now what is the purpose of writing this in this way? See, whenever you are going to write DOJ in the bracket और उसके बाहर जब आप ईयर लिखते हो तो DOJ कॉलम में जो भी ईयर है वही ईयर्स कंसीडर किए जाते हैं. डेट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हम खाली ईयर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, इसलिए हमने ईयर लिखा. नाउ लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इट. So here you can see we are getting exactly 5 entries in this table, which means what? Our syntax is exactly correct. Is it clear to everyone? यस सर. Anybody want to ask any kind of question in it? Okay, अगर नहीं पूछना है तो नो भी बोलते चलो जिससे हम आगे बढ़े. नो सर. Okay, so let us move further. Sir, Yes.
सर जिसमें हम लोग ने प्रैक्टिकल 1 किया है एमसीक्यू, ये MY, ये SQL, तो उसमें ही मतलब कंटिन्यू करना है प्रैक्टिकल 2। हाँ, प्रैक्टिकल 2 आपको आपके नोटबुक में लिखते समय तो सेपरेट लिखना है, लेकिन जो आपको टेबल यूज करना है वो प्रैक्टिकल 1 का ही यूज करना है। ओके। ओके सर। ओके, now let's move towards the next question. So in my next question, find the total annual salary to distribute job wise in the year 2017. Okay, now read this question carefully. What we want in this question, we want total annual salary, which means what? पहले हमें annual salary count करना पड़ेगा, बाद में हम उसका total करेंगे. So annual salary कैसे calculate करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आप स्मिथ कंसिडर करो, स्मिथ की सैलरी है 8,000 एंड रिमेंबर सैलरी इज ऑलवेज ऑन ऑन 1 मंथ। ओके, सो 8,000 स्मिथ की पर मंथ की सैलरी है। अब मुझे स्मिथ की एनुअल सैलरी फाइंड आउट करनी है, कैसे करेंगे? Monthly salary into 12. मंथली सैलरी इंटू 12। ओके, बट सैलरी इज ऑलवेज इन मंथ, तो हम सैलरी को खाली 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें सबकी एनुअल सैलरी मिलेगी, राइट और नो? Yes. यस। अब सबकी एनुअल सैलरी मिलने के बाद मुझे क्या चाहिए? टोटल एनुअल सैलरी, मतलब ये जितने भी पर्सन्स हमारे लिस्ट में है, हमें उन सब का टोटल फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे? फॉर एग्जाम्पल आप ये सैलरी कॉलम ही कंसिडर करो और मैंने आपको बोला कि हमें इस सैलरी कॉलम का टोटल फाइंड आउट करना है, जितने भी सैलरीज है मुझे इन सब का टोटल चाहिए। क्या करेंगे फिर हम? यस, नहीं समझ रहा है? मैंने आपको 3 नंबर्स दिए, say 2, 3 and 5, and if I ask you I want the total of these 3 numbers, then what is your answer? 10. 10। क्या किया आपने? Addition. एडिशन। तो अब मुझे सारे ग्रुप सैलरी बाय कॉलम का टोटल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे। सी वो तो हम करेंगे, लेकिन पहले मुझे क्या करना है? इन सबका सम करना है, राइट? इंटू 12। यस। सी सैल इंटू 12 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एनुअल सैलरी। यस और नो? यस। तो इससे मुझे एनुअल सैलरी मिल जाएगा सबका, लेकिन मुझे जो भी एनुअल सैलरी आएगा तो मुझे सबका टोटल भी फाइंड आउट करना है। तो इन पर मैं सम फंक्शन लगा दूंगा तो फिर मुझे सबका टोटल मिल जाएगा। इज इट और नो? यस सर। ओके, so let us use this. Okay, so give the command select sum in bracket sal multiply by 12। ओके, इससे मुझे क्या मिलेगा? एनुअल सैलरी प्लस टोटल ऑफ एनुअल सैलरी। अब मुझे इस कॉलम का नेम, मुझे सम सैलरी मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं रखना है, मुझे इसका नेम रखना है से टोटल। तो मैं क्या करूंगा? स्पेस देके एज टाइप करूंगा और टोटल लिखूंगा। ओके,
मैंने क्या लिखा, टोटल, मतलब ये जो भी कॉलम मुझे शो होगा उसका नाम होगा टोटल कॉलम। अगर आप स्पेस देके और कोई वर्ड लिखना चाहो, से टोटल सैलरी, तो आपको वो दोनों वर्ड्स डबल कोट्स में इनकोड करने इंक्लूड करने पड़ेंगे। ओके, तो अगर आप कोई सिंगल लेटर लिख रहे हो, सिंगल वर्ड लिख रहे हो, तो आप सिंपली लिखो। अगर आप मोर देन वन वर्ड लिखते हो तो आपको वो दोनों वर्ड्स डबल कोट्स में एंटर करने पड़ेंगे। ओके, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। सो टोटल के बाद क्या आएगा, फ्रॉम EMP टेबल, फ्रॉम EMP। अब जो भी आपको यूज करना है वो इसके आगे यूज करना है। नाउ टेल मी व्हाट आई नीड टू राइट। Which clause we are going to use? Where clause Where clause. For which purpose? for year. For year. So what is the syntax for where year is equals to year in bracket DOJ, then Is equals to is equals to 2017. 2017, then semicolon. बस इतना ही। सी हमें ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, जॉब वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, और हमने यहाँ पर कहीं पर भी जॉब मेंशन नहीं किया है, विच मीन्स व्हाट, हमें इसमें जॉब भी मेंशन करना पड़ेगा फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस टोटल एनुअल सैलरी जॉब वाइज। तो इसके लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करेंगे, Group by. ग्रुप बाय क्लॉज। ओके, सो ग्रुप बाय जॉब। ओके, अब हमारा हो गया डीओजे भी हो गया, जॉब भी कर दिया, टोटल एनुअल सैलरी भी कर दी। सो लेट अस चेक व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस। सो हियर यू कैन सी वी आर गेटिंग द आउटपुट एज, नाउ यू कैन सी ये जो मैंने एज टोटल करके लिखा था, तो आप इस कॉलम का नेम देखोगे तो कॉलम का नेम है टोटल। अगर आप कॉलम का नेम चेंज करना चाहोगे, अगर से टोटल सैलरी या फिर टोटल एनुअल सैलरी लिखना चाहोगे तो आप वो भी लिख सकते हो। बट जैसे कि मैंने बोला, आपको ये डबल कोट्स में इंक्लूड करना पड़ेगा। ओके, अब मैं फिर से प्रेस करता हूँ एंटर एंड यू कैन सी व्हाट इज द चेंज बिटवीन दिस टू। दिखा कुछ चेंज? Yes sir, name change हो गया. यस, Table. नेम चेंज हुआ। तो अगर आपको मोर देन वन वर्ड का नेम डालना है तो आप डालोगे डबल कोट्स में। अगर आपको खाली सिंगल वर्ड का नेम शो करवाना है तो आप उसे डायरेक्टली शो करवा सकते हो यूजिंग दिस एज सिंटैक्स। Okay, so here you can see we are having the total annual salary. You can observe in our table, I am having only 2 rows for the year 2017. इसलिए हमारे total annual salary के टेबल में हमें खाली 2 records ही show हुए। One is corresponding with analyst and another corresponding with the manager, or you can say name Scott and Clark. You can calculate it orally. स्कॉट की देखो पर मंथ की सैलरी है 30,000, तो ईयरली सैलरी कितनी होगी उसकी? $360,000. 3,60,000। तो आप ये सेकेंड में देखो, सेकेंड रो में इन इन द आउटपुट, दैट इज टोटल एनुअल सैलरी का जो आउटपुट है उसमें सेकेंड रो देखो, हमारे पास एग्जैक्ट एंट्री है 3,60,000। ओके, सो इन दिस वे यू कैन वेरीफाई इट।
Is the question number 3 clear? Yes, sir. Okay. Now there is the change in this fourth question. Display the number of employees for each job. Okay, ये ग्रुप बाय डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ से रिमूव करना है. Okay, so here you just display the number of employees for each job. Now, how many different jobs we are having? Observe in this table how many different jobs we are having. 5. 5. तो हमारे टेबल 5. में खायू 5 जॉब्स, 5 डिफरेंट जॉब्स डिस्प्ले होंगे और हर एक जॉब के लिए कितने मेंबर्स है. फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्समैन की बात करूं तो सेल्समैन के लिए मेरे पास 3 एम्प्लॉइज है, तो सेल्समैन का काउंट होगा 3. In this way, we are going to get for the remaining 4 jobs also. So again, we can apply our Ramban Jugad as the question is starting with the word display. So can anyone tell me how you are going to count the number of employees? Sir, count करो. So use the count function. So select count. Now what you need to count, that is important here. So you need to count EMPID. Okay, because EMPID is unique because we have already attached the primary key constraint to it. Then give the comma and we are interested in job. So job from which table? From EMP table, and you need to group it by job. Okay, so group by job. There is a spelling mistake. Okay, now let us see what is the output. So you can see we are getting the number of employees respective to each job. That is salesman के लिए हमारे पास 3 थे, क्लर्क के लिए हमारे पास 1 है, मैनेजर के लिए हमारे पास 2 है, और यहाँ पे देखो मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी थी while creating the table. मैंने जो जॉन्स है दैट इज 4th रो जोन्स, वहां पे मैं आर लिखना भूल गया था. ओके, इसीलिए उसे उसने अलग जॉब कंसिडर किया है. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट स्मार्ट एज अस, इसलिए वो स्पेलिंग रेक्टिफाई नहीं कर पाया, तो उसने उसे डिफरेंट जॉब असाइन किया है. दैट्स व्हाई वी आर हैविंग 6 डिफरेंट जॉब्स ओवर हियर. इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Now let's move towards the next one. So our next question is question number 5th. So display the department number and the number of employees for those departments where at least 2 employees are working. Now tell me which syntax I need to write it for this. Yes, first of all, tell me we need to start with which word in our MySQL? Select. Select. अब हमें कौन से दो कॉलम शो करवाना है? DEPTID and e-name. DPTID कॉमा सी. हमें ई नेम शो नहीं करवाना है, हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज शो करवाना है. तो हम क्या करेंगे? EMPID यूज करेंगे. ओके, बट EMPID भी हमें कैसे चाहिए? वेयर एटलीस्ट 2 एम्प्लॉयज आर वर्किंग.
तो कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज वर्किंग होंगे इन द डिपार्टमेंट आईडी? सी, if you observe the above table, then in the above table we are having exactly 3 different departments. Okay, but the number of employees may be more than one in each department. Salesman. Salesman. ओके, तो हमें ईएमपी आईडी काउंट करने हैं कि कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हमारे डिपार्टमेंट आईडी में वर्क कर रहे हैं. तो काउंट करने के लिए हम फिर से काउंट फंक्शन यूज करेंगे. फॉर दिस ईएमपी आईडी. ओके, इससे हमें क्या पता चलेगा कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं. फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम ईएमपी टेबल. ओके, सो फ्रॉम ईएमपी यहाँ तक तो आपको करना है. अब जो भी आगे करना है वो आपको सोचना है कि हम कैसे करेंगे. वेयर द काउंट ऑफ ईएमपी आईडी इज एटलीस्ट 2. अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ डिपार्टमेंट ग्रुप करना है, राइट? क्योंकि हमारे पास 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है, तो हमें नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने होंगे इन ईच डिपार्टमेंट वो हमें काउंट करना है. विच मीन्स व्हाट? हम सारे डिपार्टमेंट आईडी ग्रुप करेंगे. सो ग्रुप करने के लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? Group by department ID. सो ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी having what we are having count of EMP ID. Now what is the condition on this count? EMP ID is at least 2. At least 2 means what? Bigger than or More is than, equals sir. to or less than or is equals to? More than, sir. Bigger than. Bigger than or is equals to. Okay, so you need to enter both the symbols, bigger than also and equal to also, and it is 2, and give the semicolon and let's see what is happening. So here you can see डिपार्टमेंट आईडी में, डिपार्टमेंट आईडी 20 में हमारे पास एग्जैक्टली 3 है. डिपार्टमेंट आईडी 30 में हमारे पास एग्जैक्टली 4 एम्प्लॉयज है. और डिपार्टमेंट आईडी 10 में हमारे पास एग्जैक्टली 2 एम्प्लॉयज है. यू कैन वेरीफाई इट. ओके, हम खाली 30 के लिए वेरीफाई करते हैं. ऑब्जर्व हाउ मेनी एम्प्लॉयज वी आर हैविंग फॉर द डिपार्टमेंट आईडी 30. Yes. 4. So we are having exactly 4 employees for the department ID 30. So you can observe the second row over here. We are getting exactly 4. Is the question number 5 clear? Yes, sir. Okay. Now let's move further. Now observe the next question. Produce the output of EMP table, comma EMP underscore and underscore job for e-name and job. Now I think this is the new question for you. So let me write down the query for you and you need to tell me what is the logic behind it. Okay, so here I am writing the query for it. And job. ओके, चेक करो एक बार सही से लिखा है कि नहीं. Then I want this column name as employee designation. Okay, so I am writing that in double quotes.
employee designation from EMP table. Okay, now I'm showing you the output of this query and you need to tell me what is the logic behind it. Now observe the output and tell me. सर कौन सा एम्प्लॉय किस मतलब पोस्ट पे है? Exactly. ओके सो कौन सा एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉय के रिस्पेक्टेड कौन सी पोस्ट है या फिर कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है वो हमें शो करना था इन दिस क्वेश्चन. सो उसके लिए हम यूज करेंगे कॉन्कैटिनेशन. द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कॉन्कैटिनेशन इज CONCAT. कॉन्कैटिनेशन मीन्स इन मराठी इट इज कॉल्ड एज एकत्र. इन हिंदी एकजुट करना. In English, it is concatenation. Is the question number 6 clear? Yes, sir. And observe one more thing. ये जो भी मैंने डबल कोट्स में एंटर किया है दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर क्वेरी. ये डबल कोट्स में एंटर क्यों किया है क्योंकि मुझे इस कॉलम का नेम चाहिए था एम्प्लॉयज डेसिग्नेशन. मीन्स स्मिथ की डेसिग्नेशन है क्लर्क, एलन की डेसिग्नेशन है सेल्समैन एंड सो ऑन. ओके तो जो भी आप मोर देन वन वर्ड डालोगे तो आपको उसे डबल कोट्स में एंटर करना है आफ्टर दिस वर्ड एज. And that will take the heading of your column. Okay, now let's move further. Observe the next question. We need to display each department's total, average, minimum and maximum salary. So tell me, this is very easy now. टोटल कैसे फाइंड आउट करेंगे सैलरी पे? अभी हमने किया था. साल इंटू 12. साल इंटू 12 में मुझे पता चलेगा सबके एनुअल सैलरी. बट मुझे एनुअल सैलरी नहीं चाहिए, मुझे टोटल चाहिए सैलरी कॉलम का. सम Sum of sal. ओके सो सम ऑफ सैल. अब मुझे मैक्सिमम सैलरी चाहिए तो हम क्या करेंगे? मैक्स min sal और मैक्स max चाहिए sal. तो मैक्स यूज करेंगे, मेन चाहिए तो मेन करेंगे, एवरेज चाहिए तो AVG करेंगे. इज द आइडिया क्लियर? Yes, sir. सो लेट अस स्टार्ट टू वर्क. सो सिलेक्ट सम. ओके हम वन बाय वन जाएंगे. पहले हमें टोटल पूछा है तो हम पहले सम करते हैं. Now you need to separate two functions by using a comma. Okay, so give the comma. अब नेक्स्ट फंक्शन यूज करो. नेक्स्ट कौन सा है हमारा? एवरेज है. सो एवरेज के लिए AVG. इसका एवरेज चाहिए हमें सैलरी का. Salary का. सो गिव सैल. Then again for separating it, give the comma. Now what we want? Mean of sal. Then again give the comma and enter the last, that is nothing but max of sal. ओके अब आगे क्या करेंगे? फ्रॉम EMP टेबल. सो फ्रॉम, बस इससे हमें आंसर मिल जाएगा या और भी कुछ करना पड़ेगा? यस ऑब्जर्व द क्वेश्चन केयरफुली. हमें क्या डिस्प्ले करना है? Department एम्प्लॉय salary. काउंट. डिपार्टमेंट्स टोटल मीन्स अब हमारे पास 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है तो हमें पहले डिपार्टमेंट्स को ग्रुप करना पड़ेगा. दैट इज 10th वाला डिपार्टमेंट, 20 वाला डिपार्टमेंट एंड 30 वाला डिपार्टमेंट. तो उसके लिए क्या करेंगे? हम ग्रुप बाय क्लॉज यूज करेंगे. डिपार्टमेंट. सो ग्रुप. ओके
ओके, ग्रुप बाय DPTID। ओके, तो यहाँ पे हमारा फिनिश होता है, देन गिव द सेमीकोलन एट द एंड। नाउ लेट अस सी व्हाट इज the output of this query. So you can see first, in the first column we are having sum of salary, in the second one we are having average of salary, third one is mean of salary and the fourth one is max of salary. अब हमें ये वेरीफाई करना है कि हमारा आउटपुट करेक्ट है कि नहीं। तो हम सम और एवरेज का मैं आप पे छोड़ दो, आप कैलकुलेट करके देख लेना। हम मेन का करते हैं। ओके, तो मेन, अब हमने डिपार्टमेंट वाइज ग्रुप किया, राइट। अब देखो इसमें 10 डिपार्टमेंट के कितने एंट्रीज हैं? सर 2 दो entries है। 2 एंट्रीज हैं, और वो दोनों में से किसकी मिनिमम है सैलरी? 24,500। 24,500। सो 10th डिपार्टमेंट आईडी के लिए मुझे मिनिमम सैलरी आएगी 24,500। अब 20 ऑब्जर्व करो, कितने रिकॉर्ड्स है 20 डिपार्टमेंट आईडी के? 3 minimum salary 8,000। 8,000। और 30 के कितने हैं? 4 4। और मिनिमम किसकी है? 12,500 दो है। 12,500 और उसके 2 रिकॉर्ड्स हैं। Now you can see 8,000, 12,500 and 24,500 means उन्होंने हर एक डिपार्टमेंट की मिनिमम सैलरी कंसीडर की है यहाँ पर। दिस इज बिकॉज ऑफ दिस ग्रुप बाय डिपार्टमेंट आईडी। Similarly, you can check the maximum salary. Is it clear? Yes sir। Okay. Yes, sir. Now let's move towards the next one, that is question number 8. Now here is also a correction. See, in the first practical, we have changed this designation to job. Okay. So instead of designation, you just write job. So our question becomes display job wise employee count. Okay, ये हमने ऑलरेडी ऊपर कर लिया, राइट? You can observe the fourth question. Yes sir। ओके, तो ये हमने कर लिया, तो आप ये क्वेश्चन रिप्लेस करो। इसके जगह पे आप क्वेश्चन लो, डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, राइट डाउन दैट क्वेश्चन। डिस्प्ले एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स in ascending order of e-name. Okay, so display employee records in ascending order of e-name. Okay, so according to our Ramban Jugad, again our query is starting with select word for this. Select, then star from EMP. ओके, अब हमें अरेंज करना है इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या अरेंज करना है? Employees record in ascending order। ई नेम अरेंज करना है। सो अरेंज करने के लिए हम कौन सा क्लॉज यूज करते हैं? Order by. ऑर्डर बाय क्लॉज। सो ऑर्डर बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय ई नेम। नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट। अब चेक करो, ओरिजिनल टेबल देखो। यहाँ पर फर्स्ट ई नेम था स्मिथ, सेकंड था एलन, थर्ड था वॉर्ड। अब हमारा आउटपुट देखो, फर्स्ट नेम क्या है? एलन, सेकंड नेम क्या है? ब्लैक, थर्ड वन क्लार्क। मीन्स हमारे ई नेम्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज हो गए, और वो भी ऑर्डर कैसा है? असेंडिंग ऑर्डर।
Is it clear? Yes, sir. और एक चीज ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब ये ई नेम्स ऊपर नीचे हुए तो उनके रिस्पेक्टिव एंट्रीज भी ऊपर नीचे हुए। ऐसा नहीं है कि खाली ई नेम का कॉलम ही चेंज हुआ है। ओके, ये सारे एंट्रीज भी ऊपर नीचे हुए। दैट इज एलन कौन सा काम करता था? सेल्समैन, तो वो भी ऊपर नीचे हुआ है। Okay, now let us move towards the next one. That is question number 9. Display department which is giving maximum salary. Observe which department is giving the maximum salary. Sir, 20. See, 20 का maximum salary कितना है? 30,000 Sorry, ही sir, है। 10. 10, 10. 10. 50,000. Okay, so department 10 हमें show कर रहा है 50,000 salary. But ये हमें orally नहीं देखना है, हमें ये using the software और you can say using query find out करना है। Okay, so tell me which query I need to write. Select, yes. तो ऑलवेज हमें पहले ये वर्ड तो लिखना ही है जब हमारा क्वेश्चन डिस्प्ले से स्टार्ट होगा। तो सिलेक्ट, आगे Star from. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब हमें यहाँ पे देखो पूरे के पूरे एंट्रीज नहीं चाहिए, हमें खाली डिपार्टमेंट चाहिए। कौन सा डिपार्टमेंट मैक्सिमम सैलरी दे रहा है? यस, तो हम वो कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, दैट इज DPTID। क्योंकि हमें खाली डिपार्टमेंट आईडी से ही मतलब है, बाकी के एंट्रीज से हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम वो बाकी के एंट्री अननेसेसरीली एंटर नहीं करेंगे इन इट। Okay, then comma. Now what we want? We want maximum salary, right? So give max of sal. From which table? From EMP table. Okay, अब हमें क्या करना है? ग्रुप बाय करना है डिपार्टमेंट। सो ग्रुप बाय DPTID। ओके, एंड ऑर्डर बाय भी यूज करेंगे। ऑर्डर बाय मैक्स ऑफ सैलरी। ओके, मैक्स ऑफ सैलरी इन डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसकी लिमिट हम अप्लाई करेंगे 1। Okay, now let us see what is the output. So you can see department ID 10 था, वो हमें maximum salary दे रहा था। Now what happens अगर मैं ये लिमिट अप्लाई ना करूं? Okay, now let us see what is the output. Okay, तो जब मैं लिमिट अप्लाई नहीं करूंगा तो फिर मुझे 3 डिपार्टमेंट शो होंगे, बट मुझे एक ही डिपार्टमेंट शो करना है जिसकी मैक्सिमम सैलरी है। ओके, इसीलिए हम वो लिमिट क्लॉज भी यूज करेंगे यहाँ पे। So using this you can see we are getting exactly one entry in the output. Okay, so just see the use of limit clause. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, but in the textbook you just see what is the use of limit clause. See, whenever I am writing 1, what happens when I am going to write 2,3? What happens when I am going to write 3,5? Okay, I think 2,3 आपने practical number 1 में किया होगा limit clause से। Yes, for displaying those records from row 3 to 5. Yes, sir.
Okay. Now observe the next question. So our next question is display the EMPs who are joined in the month of September. Now tell me, this is the easiest question. So tell me which query I need to write for getting those employees whose day, whose month, whose date of joining is in the month of September. So tell me the syntax. First of all, what we need to write? Select. 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 Okay. आगे EMP ID EMP ID. where से हमें दो शो करने पड़ेंगे, EMP ID देन ename भी हमें शो करना है. Okay, so EMP ID and ename from which table? From EMP table. EMP अब जो भी आप करोगे वो इसके आगे करोगे. So tell me what I need to write. where DOJ Where DOJ सर आई is गेस सर equal डीओजे DOJ पहले ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट में इसके आएगा पहले और मंथ आएगा. एग्जैक्टली. तो इसके बाहर हम ईयर लिखेंगे या मंथ लिखेंगे? month. मंथ. मंथ, क्योंकि हमें सितंबर चाहिए. ओके, इक्वल टू क्या लिखेंगे? 9. आप 9 लिखो या फिर सितंबर लिखो. ओके, मैं सितंबर लिखता हूँ, देखते हैं क्या आता है. Okay, observe. Do we have any employee in the month who had joined in the month September? वन. So we are having exactly one employee whose name is Martin. So let us see whether we are getting the Martin in the output or not. So here you can see we are getting an empty set. ओके, ये सितंबर का इस कैपिटल करते हैं, क्या आता है देखते हैं. अगेन वी आर गेटिंग द एम्प्टी सेट. अब हम क्या करते हैं, हम 9 डालते हैं. Okay, now I am pressing enter. Now you can see we are getting exactly Martin in our output. Is it clear? यस सर. सर तो जैसे एंट्रीज आप आपके कॉलम्स में डालोगे, आपको एग्जैक्टली वही एंट्रीज इक्वल टू पे कंसीडर करनी है. अगर आप सितंबर डालोगे तो वो वर्क नहीं करेगा. हमें पता है सितंबर 9th मंथ है, बट सॉफ्टवेयर को नहीं पता. ओके, नाउ ऑब्जर्व द नेक्स्ट. ओके, आज के प्रैक्टिकल में खाली 20 क्वेश्चंस है, फिर हमारा सेकंड प्रैक्टिकल भी खत्म हो जाएगा. सो लेट अस डू इट क्विकली so that you can also enjoy your before time. So observe the next question, that is display those EMPs whose salary is odd value. चेक करो हमारे पास है कोई ऐसी सैलरी whose, क्या पूछा है, whose salary is odd value. चेक करो सैलरी कॉलम में हमारे पास कोई ऑड वैल्यू की सैलरी है? नो सर. नो. तो उसका आउटपुट क्या आएगा? एम्प्टी सेट. एम्प्टी सेट. कैसे करेंगे?
Yes, you can apply the Ramban Jugaad. That is select. Then what we need to show? E-name. E-name from which table? From EMP table. Where? ओके अब हम कैसे चेक करेंगे कोई वैल्यू ऑड है या इवन है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं 4, देन व्हाट इज योर आंसर? इज 4 ऑड और इवन? Even. इवन. अगर मैं आपको बोलूं 3, देन odd. odd, तो कैसे चेक करोगे? अगर मैंने बोला 19, इज इट इवन और ऑड? Odd. odd, ऑड. क्या कर रहे हो आप? सर हम कुछ नहीं कर Divide रहे, by हमें हमें पता है कि ऑड नंबर कौन से रहते हैं और इवन नंबर कौन से रहते हैं, राइट? yes sir, कोई बता सकता है कैसे फाइंड आउट करते हैं इवन नंबर और ऑड नंबर? सर 2 से डिवाइड करते और उसको इवन. एग्जैक्टली हम 2 से डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि वो नंबर मतलब कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 होगा तो इवन नंबर होगा, अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 नहीं है तो फिर ऑड नंबर होगा. ओके तो रिमाइंडर अगर 0 आता है तो हम बोलेंगे इवन नंबर है, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो हम बोलेंगे ऑड नंबर है. ओके तो रिमाइंडर के लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? ये आपने एक्सेल में भी किया होगा. यस एक्सेल में आपने ऐसा किया होगा ना, दैट इज 25,2. इसका आंसर आपको आता था 1, लेकिन इसके आगे आप कौन सा फंक्शन यूज करते थे? यस कौन सा करते थे? किया था ये फंक्शन यूज? mod मॉड फंक्शन. मॉड फंक्शन गिव्स मी द रिमाइंडर, बट ये इक्वल टू 1 आया मीन्स व्हाट? इसका रिमाइंडर 1 आया. अब हमें क्या चाहिए? द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट. अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो इवन नंबर है, नहीं हो रहा तो ऑड नंबर है. तो नहीं हो रहा मतलब नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो हम बोलेंगे कि वो ऑड नंबर होगा, राइट? यस और नो? यस सर. yes सो नॉट इक्वल टू के लिए हम कोई भी सॉफ्टवेयर में सिंबल यूज करते हैं फैक्टोरियल और इक्वल टू. Exclamatory. ओके फैक्टोरियल और इक्वल टू हमने यूज किया मीन्स व्हाट? okay you can say it as factorial or exclamatory mark, okay but as a mathematician तो मैं इसे factorial ही बोलता हूँ. okay तो आप बोल सकते हैं exclamatory mark also. तो exclamatory mark and equal to ये हम not equal to के लिए यूज करते हैं. तो अब मुझे बताओ हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? मॉड. हमें क्या चेक करना है? क्या ऑड नहीं रहना चाहिए? क्या इवन नहीं रहना चाहिए? salary सैलरी. सो यहाँ पे हम डालेंगे सैल कॉमा 2 and that salary is not divisible by 2, not divisible by 2. So we are having that salary is in odd number. So let us try to verify what is the output. So you can see we are having an empty set because there is no salary in this salary column whose value is odd. Is the question number 11 clear? यस सर. yes sir Okay. Now observe the next one, that is question number 12. We need to display the EMPs, those who join in the company before
15th of the month. ओके तो बताओ क्या यूज करेंगे? सर डीओजे उसके पहले डेट वो वाला। डीओजे उससे पहले डेट. हाँ ओके सो डेट इससे आएगा Less than 15. less than yes sir 15. less than Okay, so let us modify it. Less than 15. Okay, इससे आएगा. Just check it. So we are getting an empty set. But you can see, do we have any such employee whose joining date is before 15th? Yes, we are yes sir having one, two, three employees in the list. But here we are getting an empty set. Which means what? We need to modify this syntax. Now can you able to modify it? अगर इस डेट को मैं डे कर दूं तो चलेगा? yes sir यस सी डेट में हमें प्रॉपर डेट होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास प्रॉपर डेट 15 कहीं पर भी नहीं है, इसीलिए एम्प्टी सेट है. अब हम डेट डालते हैं और चेक करते हैं आउटपुट आता है कि नहीं. सो यू कैन सी वी आर हैविंग एग्जैक्टली 3 रिकॉर्ड्स. ओके अगर आपको सारे एंट्रीज शो करने हैं तो आप ये 2 कॉलम नेम्स हटाकर स्टार भी प्लेस कर सकते हो. ओके सो यहाँ पर आपको एंट्रीज भी मिल जाएंगी और डेट ऑफ जॉइनिंग भी पता चलेगा. 2, 1 एंड 9 आर लेस देन 15. ओके सो अगर आपको पूरे रिकॉर्ड्स देखने हैं तो आप स्टार यूज करोगे. अगर पर्टिकुलर कॉलम देखने हैं तो आप पर्टिकुलर कॉलम्स यहाँ पे मेंशन करोगे. इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, now let's move towards the next one. So our next question is display the employees names in capital letters from employee table. ओके अब हमें एम्प्लॉयज के सारे नेम्स कैपिटल चाहिए. अगर आप ई नेम्स में देखोगे तो उन सब का फर्स्ट लेटर ही कैपिटल है, लेकिन अब मुझे सारे लेटर्स कैपिटल में करना है. तो कैसे करेंगे? एनीबॉडी नोज? Which function we are going to use? First of all, tell me what is the first statement of this query, first word of this query? Select. Select. Okay, so आंख बंद करके लिख देना है जब भी आपको डिस्प्ले से क्वेश्चन मिला तो. Okay, then select. What we need to select? E names, right? E name. लेकिन हमें E name कैसे चाहिए? कैपिटल लेटर्स में चाहिए. तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? Yes, anyone? At least guess which function we are going to use. नहीं पता? Okay, so let me tell you. So we are going to use upper function. तो ये सारी चीजें आपने MS Excel में कर ली है. ओके सेम फॉर्मूलेज और सेम फंक्शंस यूज होना है. So e name in uppercase from which table? From EMP table, and at the end you just give the semicolon and just press enter. So you can see सारे के सारे ई नेम्स हमें कैपिटल लेटर्स में शो हुए.
सो सारे के सारे कैपिटल लेटर्स में शो करने होंगे तो हम अपर फंक्शन का यूज करेंगे। अब मुझे सारे के सारे लोअर केस में शो करने हैं तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? यस, Lower function. लोअर फंक्शन। दिखाओ करके या जरूरत नहीं है? देख ही लो, No, sir. 3 ही वर्ड टाइप करने पड़ेंगे। Okay, so you can see all the e names are in lowercase now. Okay, now let's move towards the next one. Display the length of the employee name from EMP table. Okay, so EMP table में हमें employee name की length find out करनी है। So कैसे करेंगे? Again, our first syntax, first word is select. इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है ई नेम की, तो हम ई नेम का कॉलम मेंशन करेंगे। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो हम लेंथ फंक्शन यूज करेंगे। ओके, लेंथ, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है ई नेम्स की, सो ई नेम फ्रॉम विच टेबल? फ्रॉम ईएमपी टेबल। ओके, सो यू कैन सी स्मिथ जो भी वर्ड है उसकी लेंथ है 5, एलन की लेंथ है 5, वॉर्ड की लेंथ है 4, मार्टिन की लेंथ है 6 एंड सो ऑन। You can easily verify it. Okay, now let's move towards the next one. Clear है सबको ये? यस सर। Yes, sir. Okay. See, ये easy है इसीलिए मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा। Okay, now let's move towards the next one. So our next question is display the employees with their department names. Okay, तो अब हमें वो सारे एम्प्लॉयज शो करना है along with its department. So क्या आएगा? सिलेक्ट, आगे E name. सिलेक्ट, हमें क्या शो करना है? डिस्प्ले द एम्प्लॉयज विद देयर डिपार्टमेंट नेम्स। सो सिलेक्ट ई नेम, देन, या फिर हम सारे एंट्री शो करें? यहाँ पर हमारे पास डिपार्टमेंट नेम्स है। ऑब्जर्व इन दिस टेबल, सर फर्स्ट टेबल में है। फर्स्ट टेबल में है। ओके, सो हमें फर्स्ट टेबल भी यूज करना पड़ेगा, मीन्स हमें यहाँ पे दो टेबल मर्ज करने पड़ेंगे, राइट? यस सर। सो ई नेम, देन हम एम्प्लॉय आईडी भी डाल देते हैं, EMP ID, कॉमा ई नेम, आगे D name for department, then सर जॉइन क्लॉज यूज करना पड़ेगा। पहले हम नॉर्मली करके देखते हैं, अगर नहीं हुआ तो ज्वाइन करेंगे। ओके, ओके सर। सो फ्रॉम EMP कॉमा DPT where EMP dot DPT ID
is exactly equals to dpt dot dpt id. ओके सी यहाँ पे हमने दो कॉलम मर्ज किए, दो टेबल्स मर्ज किए. फर्स्ट वन इज ईएमपी एंड डीईपीटी with their respective columns, and here we are using the condition emp dot department id is same as dept dot department id. तो इसमें हमें वो सारे रिकॉर्ड शो होंगे जिनका emp विथ जिनका डिपार्टमेंट आईडी विथ रिस्पेक्ट टू emp टेबल एंड डिपार्टमेंट आईडी विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट टेबल सेम होगा. ओके सो यू कैन सी से अगर मैं फर्स्ट टेबल भी यहाँ पे शो करूँ तो आपको समझ में आएगा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम डीपीटी. ओके सो यू कैन सी ऑपरेशन का डिपार्टमेंट आईडी था 40, लेकिन हमारे ईएमपी टेबल में 40 किसी का डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, इसीलिए हमारे टेबल में ऑपरेशन का कोई रोल नहीं प्ले हुआ. हमें खाली यहाँ पे वो सारे डिपार्टमेंट आईडी मिले जिनका डिपार्टमेंट आईडी सेम है विथ रिस्पेक्ट टू ईएमपी कॉलम ईएमपी टेबल. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. ओके सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. अब इसमें हम ज्वाइन का यूज करते हैं. सी अब हमने इसमें ज्वाइन का यूज नहीं किया, अब हम नेक्स्ट में ज्वाइन का यूज करते हैं क्योंकि उन्होंने स्पेसिफाई भी करके रखा है. यस, डिस्प्ले द लोकेशन ऑफ स्मिथ इन एम्प्लॉय टेबल, यूज इनर ज्वाइन. ओके तो यहाँ पे हम ज्वाइन का यूज करते हैं. सो कोई बता सकता है कैसे करेंगे? स्मिथ की लोकेशन शो करनी है मीन्स व्हाट? स्मिथ कौन से सिटी में रहता है, और सिटी हमारे कौन से टेबल में है? डिपार्टमेंट टेबल में. ओके यू कैन सी स्मिथ क्या करता है. स्मिथ का डी नेम क्या है? रिसर्च है, और रिसर्च वाले सारे कहाँ पे रहते हैं? मुंबई में रहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू दिस टू स्मिथ का सिटी कौन सा आएगा? मुंबई आना है. बट हाउ यू आर गोइंग टू गेट यूजिंग ज्वाइन? So as you can see, the question is starting with display. So our query is going to start with the word select, then location, that is city, from EMP, inner join, DPT. अब आप बोलोगे सर सिटी तो डीपीटी डिपार्टमेंट टेबल में है, लेकिन मैंने यहाँ पे ईएमपी यूज किया. ओके क्यों यूज किया? बिकॉज मैं इन दोनों को ज्वाइन कर रहा हूँ यूजिंग इनर ज्वाइन. ओके यूजिंग क्या यूज कर रहे हैं हम? डिपार्टमेंट आईडी यूज कर रहे हैं उनका. ओके सो यूजिंग डिपार्टमेंट आईडी. अब आगे क्या आएगा? किसका डिपार्टमेंट आईडी चाहिए हमें? यस किसकी सिटी हमें फाइंड करने को बोली गई है? Smith. स्मिथ. सो वी आर गोइंग टू यूज वेयर क्लॉज. वेयर ई नेम दिख रहा है सबको, या इसे हाइड कर दूं? ओके वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू, अब स्मिथ इज इन अल्फाबेट तो इसे हम सिंगल कोट्स में एंटर करेंगे.
ओके, सो हमें स्मिथ की सिटी फाइंड आउट करनी है. सो लेट अस चेक व्हाट इज द आउटपुट. So you can see in the output we are getting city is Mumbai. ओके क्यों? क्योंकि स्मिथ क्या कर रहा है, स्मिथ का डी नेम है रिसर्च, और रिसर्च करने वाले सारे कहाँ पर है, मुंबई में, इसलिए स्मिथ की सिटी आई मुंबई. इज इट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक किसी को? No, sir. Okay, so far so good. So let's complete the remaining 4 questions also. Okay, लास्ट वाले का आंसर मैं नहीं दूंगा, लास्ट वाला इज क्वाइट सिंपल. सो इसका आंसर मुझे आपको ही करना है. ओके हम ये 3 का आंसर्स करते हैं, बाद में हम 4th पे देखते हैं क्या आएगा. सो 17th वन इज डिस्प्ले द एम्प्लॉइज whose salary is greater than his manager's salary. ओके मतलब अब हमें वो सारे एम्प्लॉय शो करने हैं जिनकी सैलरी उनके मैनेजर के सैलरी से ज्यादा है. ओके दिस इज समटाइम्स हैपन, ओके रेयरली हैपेंस. दैट इज एम्प्लॉय को ज्यादा सैलरी रहती है देन मैनेजर. ओके सो इट इज रेयरली हैपन. So you can see how many manager we are having. Three. 3. ओके लेकिन ये थर्ड वाले में स्पेलिंग मिस्टेक है, वहां पे खाली मैनेज ही होके रखा है. ओके तो वो मैनेजर में हम कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप आपके पीसी पर परफॉर्म कर रहे होगे तो उसे करेक्ट कर लेना बाद में. ओके तो अब हम फिलहाल केवल 2 मैनेजर ही कंसिडर करके चल रहे हैं, क्योंकि थर्ड मैनेजर में स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो मैनेजर कंसिडर नहीं किया जाएगा. ओके सो हमारे पास खाली 2 मैनेजर है. फर्स्ट वन इज विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट आईडी 30 एंड द सेकेंड वन इज विथ रिस्पेक्ट टू डिपार्टमेंट आईडी 10. अब 30 डिपार्टमेंट के कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास? सर 4. 4 रिकॉर्ड्स है, और उसमें से मैनेजर की सैलरी है 28500, और बाकी के जो 3 है वो एम्प्लॉयज है. तो उनमें चेक करो मैनेजर की सैलरी बड़ी है या छोटी है. सर सबकी छोटी है, सारी कम है. सबकी छोटी है मीन्स 30 डिपार्टमेंट के लिए हमें कोई रिकॉर्ड नहीं शो होगा. अब 10 के लिए चेक करो, 10 के कितने रिकॉर्ड्स हैं? 2. 2. और जो दूसरा होगा वो एम्प्लॉय होगा, और यहाँ पर दूसरा तो प्रेसिडेंट है. ओके बट सॉफ्टवेयर को क्या पता वो एम्प्लॉय है क्या क्या है. तो हम चेक करते हैं हमारे क्वेरी से कि हमें आउटपुट क्या मिलता है. ओके सो टेल मी विच सिंटैक्स आई एम गोइंग टू राइट. Select. यस सिलेक्ट. आगे I think this is the new for you, so let me write it down and you just understand the logic behind it. From EMP A, comma
A comma, then empb, where A dot मैनेजर आईडी के लिए हम लिखेंगे mgr id is equals to b dot emp id and A dot sal is bigger than B dot sal. Okay, now let me show you the output. After that, I am going to explain. Okay, so यहाँ पे मैंने क्या कंसिडर किया, यहाँ पे मैंने दो ई नेम्स कंसिडर किए. ओके, और वो दो ई नेम्स को मैंने डिफरेंट कैसे बताया, बाय राइटिंग दिस A dot and B dot. Okay, A dot E name means first name and B dot E name is nothing but the second name. Similarly, A dot sal is nothing but the first salary, B dot sal is nothing but the second salary. And here I am going to use EMPA and EMPB. EMPA is for the first table, EMPB is for the second table with respect to B. And here I am going to use where clause for giving this condition, that is A dot manager ID is equals to B dot employee ID and A salary is bigger than B salary. ओके, मतलब A जो भी पर्सन होगा वो होगा, उसकी सैलरी B के सैलरी से बड़ी रहनी चाहिए. ओके, यू कैन ऑब्जर्व वेयर के बाद में मैंने A डॉट एम जी आर आई डी इज इक्वल्स टू बी डॉट ई एम पी आई डी लिखा है. मतलब मैं A जो भी मैनेजर आईडी होगा उसे मैं B असाइन कर रहा हूँ, B डॉट ई एम पी आई डी. ओके, तो B डॉट ई एम पी आई डी क्या बन जाएगा, मैनेजर बन जाएगा. तो हमें वो सारे एम्प्लॉय शो करवाना है जिनकी सैलरी मैनेजर से बड़ी होगी. तो मैनेजर की सैलरी कितनी है, बी डॉट सैलरी, बिकॉज मैंने एम जी आर आई डी को क्या असाइन किया है, बी डॉट ई एम पी आई डी. तो बी डॉट सैलरी किसकी होगी, मैनेजर की होगी, बट हमें वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी बी डॉट सैलरी से बड़ी हो, इसलिए मैंने ए डॉट सैलरी यूज किया है. इज इट क्लियर टू यू? यस सर. Yes, sir. ओके, सी ये सारा आपका डिपेंड करता है वेयर के बाद में आप मैनेजर आईडी को क्या असाइन कर रहे हो. अगर मैंने यहाँ पे ए असाइन किया होता तो फिर यहाँ पे मैं बी डॉट सैलरी इज बिगर देन ए डॉट सैलरी लिखता. ओके, क्योंकि यहाँ पे मैंने असाइन क्या किया, मैनेजर को बी सैलरी असाइन की, बट हमें वो सारे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी मैनेजर की सैलरी से बड़ी रहनी चाहिए. ओके, सो वी आर हैविंग एग्जैक्टली वन नेम which is nothing but Scott. Okay, now let's move towards the next question. So our next question is nothing but display the employees whose jobs are same as employee Alan. Okay, now let us observe our table. Alan का job क्या है? सेल्समैन. Salesman. So salesman के कितने jobs हैं हमारे पास? और you can say salesman job के 10. कितने person है? 3. 3. तो हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड शो होंगे, या फिर 2 भी हो सकते हैं अगर हमने एलन को निग्लेक्ट किया तो. ओके, सो क्या आएगी इसकी क्वेरी? यस, चलो कोई बोले उससे पहले मैं ये लिख दूं, सिलेक्ट. ओके, आगे बताओ क्या आएगा.
क्या क्या शो करने हैं हमें? EMP ID, ई नेम एंड जॉब। सो पहले वो लिख दो, EMP ID, then e name, then jobs, or you can say job. From which table? From EMP table. अब बताओ आगे क्या आएगा? कंडीशन किस पर लगाने हैं हमें? पहले तो ये बताओ कौन सा क्लॉज यूज करेंगे? यस, सो लेट मी टेल यू। वेयर क्लॉज यूज करेंगे। कंडीशन किस पे लगनी है? जॉब्स पर। सो जॉब इज इक्वल्स टू, अब ये हम ब्रैकेट में एंटर करेंगे। जॉब हमें कैसे सिलेक्ट करना है? जॉब हमें सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP। सर सिलेक्ट में डबल ही आ गया है। ओके, so select job from EMP where what? E name is equals to, Allen. E name is equals to Allen। अब हम सिंगल कोट्स में एंटर करेंगे, Allen। ओके, सो हमारे टेबल में क्या शो होंगे? EMP ID, E name एंड जॉब्स फ्रॉम EMP टेबल वेयर। अब हमें जॉब कैसा चूज करना है? जॉब हम वैसा चूज करेंगे सच दैट एलन का जॉब हो। तो हम यहाँ पे फिर से SQL की क्वेरी डालेंगे, सिलेक्ट जॉब फ्रॉम EMP टेबल वेयर ई नेम इज इक्वल्स टू एलन। तो एलन का जो भी जॉब होगा वो जॉब असाइन होगा। ओके, सो लेट मी शो यू द आउटपुट। So here I am getting an error. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near double quotes at line 1. कहाँ पे jobs? सर जॉब Job means what? ये एलन डबल कोट्स में करे क्या? Again we are getting the same error. और ब्रैकेट भी बंद नहीं है ना? हाँ, यस राइट। ओके, सो हमने ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है। So this is the drawback of this software. See, हमें पता तो चलता है कि एरर कहाँ पर है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर हमें एग्जैक्ट नहीं बताता है कि हमने एरर क्या किया है। ओके, सो ब्रैकेट कंप्लीट करना है हमें। नाउ लेट अस सी। नाउ वी आर गेटिंग द आउटपुट। ओके, सो एग्जैक्टली 3 आउटपुट मिले हमारे पास, एलन सेल्समैन, वॉर्ड सेल्समैन एंड मार्टिन सेल्समैन। इज द क्वेश्चन क्लियर? यस सर। ओके, अब 19 वाला परफॉर्म करते हैं। डिस्प्ले द एम्प्लॉइज हु आर सीनियर टू एम्प्लॉय किंग। अब सीनियरिटी कैसे चेक होती है? यस, सर पोस्ट अपना डेजिग्नेशन। डेसिग्नेशन से हम सीनियरिटी चेक करेंगे। नो MGR ID. MGR ID से करेंगे। चलो मान लो कि मैंने फर्स्ट, आपने क्या बोला? डेसिग्नेशन।
मान लो कि मैंने सारे डेसिग्नेशन सेल्समैन ही ले लिए और एक ने क्या बोला, MGR आईडी। अगर मैंने सबका मैनेजर आईडी सेम ले लिया तो उनमें से हम कैसे पता करेंगे कौन सीनियर है कौन जूनियर है? सर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एग्जैक्टली हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पता करेंगे कि कौन सीनियर है कौन जूनियर है। जो पहले ज्वाइन होगा वो सीनियर होगा, जो बाद में ज्वाइन होगा वो जूनियर होगा। इज दैट क्लियर? Yes, please let me know. Is that clear? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Okay, so यस select. सर। क्या select करेंगे? E name from which table? From EMP table. Where? कंडीशन किस पर होगी? Yes, कौन से कॉलम पे कंडीशन अप्लाई करना है? Date of joining. That is DOJ. कैसा होना चाहिए? DOJ is bigger than. अब फिर से हम यहाँ पे एसक्यूएल की क्वेरी फिर से अप्लाई करेंगे जैसे हमने अबो क्वेश्चन में किया था। दैट इज जॉब हमने सिलेक्ट किया था जैसा जॉब एलन का था। अब यहाँ पे हमें ई नेम सिलेक्ट करना है जो कि किंग होगा। सो सिलेक्ट मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग सिलेक्ट करना है विथ रिस्पेक्ट टू किंग। सो सिलेक्ट DOJ, select DOJ from employee table where e name is equals to king। लेकिन ये किंग भी हम सिंगल कोट्स में इंक्लूड करेंगे। एट द एंड हमें ब्रैकेट भी क्लोज करना है, अदरवाइज वी विल गेट एन एरर। ओके, तो यहाँ पे वो सारे एम्प्लॉयज शो होंगे जिनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग किंग के डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले हुआ होगा। लेट्स सी, डू वी हैव सच एम्प्लॉयज इन आवर लिस्ट? First of all, observe the king. Where we are having king, king is nothing but the president. King की date of joining क्या है? 2011-2016। ओके, पीछे से डेट यहाँ पे चलती है। इन दिस सॉफ्टवेयर डेट पीछे से चलेगी। दैट इज डे होगा, डेट होगी 20, मंथ होगा 11 एंड ईयर होगा 2016। Now check how many employees we are having who is senior to this king. 6. 6. So let us see in the output how many employees we are getting. Okay, so किसी ने 6 बोला लेकिन हमें 2 ही आउटपुट मिला है। फिर से चेक करते हैं। ओके, सी 2011 और 2016 से पहले एक तो ये है, दिस इज द सेकेंड वन, थर्ड वन, एंड फिफ्थ, सिक्स्थ। यस, हमारे पास एग्जैक्टली 6 रिकॉर्ड थे लेकिन हमें शो हुए खाली 2 रिकॉर्ड्स, क्लार्क एंड स्कॉट। हम क्लार्क एंड स्कॉट की डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेक करते हैं क्या है जिससे कि हमें पता चले कि क्या मिस्टेक हुई है। ऑब्जर्व द स्कॉट। सर लेस देन आएगा, आपने मोर देन लिखा है इसके वजह से। एग्जैक्टली। ओके, सी अगर मैं मोर देन डालू तो ये सारे जूनियर होंगे। ओके, तो ये 2 जो भी हमें शो हुआ है वो सारे जूनियर होंगे। और अगर मैं यहाँ पे लेस देन करूँ तो फिर
मुझे सीनियर वाले मिलेंगे. Okay, now you can see we are having exactly 6 records. Okay, तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसे एंटर कर रहे हो. Is it clear? यस सर. Yes, यस sir. ओके और मिस्टेक्स होती रहनी चाहिए जिससे कि हम सीख सकें. नाउ इट्स योर टाइम. Tell me the query for this last one, that is display current date and time. Current date is 28/9/2021 and current time is 5:51. So tell me. ओके आप फर्स्ट वर्ड बोलो, उससे पहले ही मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट. अब बताओ आगे क्या करें. ये आपने माय MS एक्सेल में भी किया होगा. दैट इज करंट डेट और करंट टाइमिंग. टाइमिंग का तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आई थिंक करंट डेट का तो आपने किया होगा. पता है किसी को? एटलीस्ट से यस और नो. Sir, select current date and time. सो चेक करते करंट डेट एंड टाइम. करंट डेट. ओके देन ओपन ब्रैकेट कॉमा टाइम. ओके इससे तो हमें नहीं शो हुआ, कुछ तो एरर मिला. मीन्स हमें ये मॉडिफाई करना पड़ेगा. तो Select मॉडिफिकेशन में क्या star करेंगे? from, sir, select star from current and time. Current date and time. सो सिलेक्ट Star from स्टार current. फ्रॉम. सी यहाँ पे हम करंट डेट और टाइम चूज कर रहे हैं, मतलब हमें हमारे पास टेबल का तो कोई काम ही नहीं है. फिर भी मैं आपके तसल्ली के लिए शो करवाता हूँ. तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करंट डेट एंड टाइम. एंड भी डालो यहाँ पर या कॉमा से चल जाएगा? चलो एंड डालते हैं. अगेन वी आर गेटिंग. See now this time this is a little bigger error. ओके सी यहाँ पर टेबल का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमें करंट डेट और करंट टाइम जानना है, तो हम टेबल यूज ही नहीं करने वाले. ओके सो ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP लिखना तो गलत होगा यहाँ पे. हम इसे ही थोड़ा मॉडिफाई करते हैं. ओके ये करंट पूरा लिखने से अच्छा हम खाली CUR लिखते हैं. ओके पहले हम खाली एक के लिए चेक करते हैं, बाद में अगर वर्क हुआ तो हम दोनों एट ए टाइम कर लेंगे. ओके सो कर डेट. नाउ लेट मी प्रेस एंटर. सो यू कैन सी कर डेट तो वर्क कर गया. दैट इज टुडेज डेट इज 28/9/2021. ओके अब हम टाइम के लिए वर्क करते हैं. बाद में हम दोनों को कंबाइन कर देंगे यूजिंग अ कॉमा. अब एनी गेसेस फॉर टाइम? यस Sir, आप. CUR time. CUR time. Let us do that. ओके और आपको ये ओपन ब्रैकेट ऑलवेज एंटर रखना ही है. ओके सो करंट कर टाइम, देन
semicolon. Okay, so it is showing me 17:55:55. Yes, sir. Okay, so current time is also working. Now let us see what happens when I'm going to use now. Okay, so when I'm going to use now, तो now में हमें दोनों मिल जाएंगे. Okay, that is current date भी मिल जाएगा और current time भी मिल जाएगा. Is it clear to everyone? Yes, sir. तो अगर आपको दोनों एट ए टाइम चाहिए तो आप सिलेक्ट नाउ यूज करो, अलग अलग निकालना है तो सिलेक्ट कर डेट, सिलेक्ट कर टाइम. ओके, और अगर आपको ये दोनों भी कंबाइन करने हैं तो आप कर डेट के साथ कॉमा देकर कर टाइम भी यूज कर सकते हो. लेट अस सी व्हाट इज द आउटपुट. ओके, तो अगर आप आउटपुट चेक करोगे तो पहले यहाँ पे बीच में वर्टिकल लाइन प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन इसमें वर्टिकल लाइन प्रेजेंट है. ओके, क्योंकि मैंने इसमें 2 कॉलम एंटर किए और यहाँ पे मैंने Yes, खाली sir. एक ही कॉलम नाउ का एंटर किया था. इज इट क्लियर टू एवरीवन? सर यस. सर बिना कर टाइम और कर डेट के सिलेक्ट नाउ से भी कर सकते हैं ना? हाँ, देखो ना, हमने किया है ना, सिलेक्ट नाउ करके भी हमें दोनों मिला है. ओके सर. ओके, तो यहाँ पर हमारा ये सेकंड प्रैक्टिकल कंप्लीट होता है. नाउ एनीबॉडी सर वांट इसका टू आस्क? आंसर यस. सर इसका आंसर प्रीवियस जैसे पिछले वाला लिखे थे वैसे लिखेंगे ना? यस. तो अगर आपको स्क्रीनशॉट या फिर मोबाइल रिकॉर्डिंग करनी है तो मैं आपको स्क्रीन स्क्रॉल कर देता हूँ. तो आप आपकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो. जो आपके मोबाइल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया होगा, फिर आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Otherwise, I am going to upload this video on YouTube, so you can also take it from there. क्या करना है? रिकॉर्डिंग करोगे? No, sir. Screenshot लिए हैं. ओके, ले लिए स्क्रीनशॉट. देन इट इज वेल यस एंड सर. गुड. अगर फिर से लेना होगा तो बता दो, अदरवाइज हम स्टॉप करते हैं. Okay, so anybody want to ask any kind of questions now? No, sir.